Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss about learning outcomes. These are basically topic outcomes. After completing this topic, student will be enabled to know about meaning of outcomes, concept of outcomes, different parts of outcomes, and development of outcomes under taxonomies. We are discussing 4.1 Defining the learning outcomes according to Bloom's and Solow taxonomy. Our last two lectures, lecture number 16 and 17, was also part of this taxonomy and this learning outcomes topic. Learning outcomes. If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else. If we do not have any idea that what we are going to do in our future life, then how we will find our destination? Learning outcomes are goals for students' learning that you as the instructor set for your course. They essentially answer the question, what will student learn? Course level or semester long learning outcomes are usually shared with students in the syllabus or in the course outline. Learning outcomes demonstrates what you want students to know, do or value by the end of your course. A typical learning outcome may start with by the end of this course, student will be enabled to. Then continue the sentence with an action verb and a goal for the course. Learning outcomes are statements that indicate what students will know, value, or be able to do by the end of the course. They are the accessible ends of education written from the student's perspective, focused on what students can expect to achieve if they have learned successfully. In order to be accessible, they must specify things that can be observed, that are public, and not activities or states that are internal to students' mind. Why learning outcomes are important? Strategic use of learning outcomes in our teaching and course design can result in many potential benefits. A few of these are like better learning. Learning outcomes can be used to provide guidance for students so they know what is expected of them and thus what they should focus on in their studying. Attend to in a class and look for in their readings. This focused time on task means less time is wasted. They can also be used to set high expectations which we then support with strategic and intentional teaching. The second one is for increased motivation. Learning outcomes reinforce the beliefs that there is a real point to what is being taught and assessed, that there is a reason for what they experience in the courses. Students are less likely to become dismissive of courses that seem to have a point and more motivated to take them seriously. Overall, students in outcome-based courses take a deeper approach to their learning, putting their effort into actively trying to understand what they are learning rather than simply memorizing lists of facts to get through an exam. Third one is better performance on assignments and tasks. Not surprisingly, when students know exactly what they are expected to demonstrate, they are better able to demonstrate those things.
They spend less time trying to guess what the instructor wants and more time getting the job done. Focused and strategic teaching. Anyone who has made the switch to outcome based teaching will tell you that it can transform the way you play courses and classes for the better by defining what students are supposed to know, value and be able to do the end of the course. Focused and strategic teaching. Anyone who has made the switch to outcome based teaching will tell you that it can transform the way you plan courses and classes for the better. Then there is strategic assessment. Just as learning outcomes can be used to create strategically targeted lessons, they can be used to create strategic target and appropriate assessment methods. Assessment that test whether students have met the learning outcomes are also likely to be consistent with the sorts of teaching methods that help students learn those outcomes. Assessment becomes part of the student's overall learning experiences. The learning outcomes even provide a basis for assessment criteria. Attention to outputs. The use of learning outcomes help us focus on the outputs of our work rather than the inputs we work with the student we have, and what matter in the end is how much they have learned and transformed between the time they meet us and the time they leave us. That's where we can make a difference. A student who enters our university by the skin of his teeth, barely meeting the entrance requirements but graduates as someone able to meet our highest expectations, is the sort of success story we should be writing. Then meeting requirements. Even if none of the benefits mentioned above appeals to you, perhaps the following will sufficient: that learning outcomes are now required for university programs in all countries. All professional accreditation boards, they all want that outcome based approaches are widely recognized nowadays. What to consider in designing a module: constructive alignment. Whenever we will design outcomes, the things which will be in our mind are: who are my students, उनकी एज क्या है, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं, वो किन चीज़ों को समझ सकते हैं, व्हाट आर माय एम्स एंड लर्निंग आउटकम्स, और जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके मुताबिक मुझे इनसे कौन सी लर्निंग आउटकम्स चाहिए, व्हाट आउटकम्स डू आई होप स्टूडेंट्स विल अचीव, और मुझे ऐसा क्या लगता है कि वो कौन सी आउटकम्स हैं जो स्टूडेंट्स गेन करेंगे मेरी क्लास में, what do I want to assess at the end of my methodology. जब मैं सब अपना कोर्स कवर करूँगी तो वो कौन से बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे जिनको मैं असेस करना पसंद करूँगी. हाउ डू आई असेस हाउ डू आई वॉन्ट टू असेस माई स्टूडेंट्स, और वो कौन से पैटर्न्स होंगे जिनसे मैं अपने स्टूडेंट्स को असेस करूँगी. what segment of content do I think are essential building blocks for students. इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पहले कर चुके होते हैं और वो कमिंग अप चीज़ों के लिए आपको बेस प्रोवाइड कर रही होती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने सोलो टेक्सोनॉमी एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी मैनी मोर टाइम्स की है, लेकिन इस टॉपिक को, आउटकम्स को समझने के लिए हमें उसकी दोबारा रिवीजन की ज़रूरत थी. तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू मेक आउटकम्स, इनको कैसे डेवलप किया जाता है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले से सीखे हुए नॉलेज की हेल्प की ज़रूरत थी. तो इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आउटकम्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे इंक्लूडेड होंगी, और टीचर को इस कंटेंट को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा इसेंशियल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. What teaching and learning strategies do I want to use, और अपने आउटकम्स और इस पूरे टॉपिक को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए मुझे कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना पड़ेंगी. इन व्हाट मोड्स विल आई डिलीवर द कोर्स, और वो कौन से तरीक़ाकार होंगे जिनसे मैं अपना कोर्स डिलीवर कर पाऊँगी. क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स होंगे, क्या वो मेरी फेस टू फेस मीटिंग होगी, या मेरी टेलीफोनिक कॉल होगी बच्चों के साथ, या मैं कोई रिकॉर्डेड पैगाम बच्चों को भेज सकूँगी.
Now there is one confusion always that will come in your mind, that what are objectives and what are outcomes. Now for that purpose I added this slide for you people, so you can understand better difference between objectives and outcomes. Objectives. Objectives describe skills, tools or content that a student will master by the end of the course. जो आप कोर्स को ख़त्म करने के बाद जो स्किल्स, टूल्स और कंटेंट आप तक पहुंचेगा जिसमें आप मास्टरी करेंगे, ऑब्जेक्टिव उनको उनको लिखते हैं और उनको एक तरह से हम उन्हें सेट कर लेते हैं. Outcomes describe overarching goals that a student will be able to demonstrate by the end of the course. और इसमें हम उन चीज़ों को लिखते हैं आउटकम्स में जो हमें प्रेजेंटली परफॉर्मेंस के तौर पे मिलेंगी. Objectives require the use of basic thinking skill such as knowledge, comprehension and application, while outcomes that are totally dependent on higher order thinking in which we will assess analysis, synthesis and evaluation. Objectives do not necessarily result in a product. Most often objectives are synthesized or combined to produce something that measure an outcome, while outcomes result in a product that can be measured and assessed. Now these are learning objectives and student learning outcomes. Learning objectives are broad, tied to instructor delivery of content, ठीक है, and not easily measurable. इनको assess करना आसान नहीं होता. While student learning outcomes tied to specific skill or product students are expected to learn. इसमें ज़्यादा चीज़ जो डेली बेसिस पे की जाती है टॉपिक टू टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि स्टूडेंट से डेली उसका एक फीडबैक लिया जाता है और इस चीज़ को अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट की तरफ से हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिल रही हैं या नहीं. और जो हमारी आउटकम्स होती हैं इनको असेस किया जा सकता है, इनके लिए टेस्ट डिज़ाइन किए जा सकते हैं. इसके लिए हम असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर रखते हैं, सो दे आर मेजरेबल. नाउ देयर आर सम टिप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स को स्टार्ट करने से पहले और इसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से पहले वी शुड हैव सम टिप्स. वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. फोकस ऑन आउटकम्स नॉट प्रोसेसेस. ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा फोकस ये करना होता है कि जो आउटकम है हमें रिजल्ट मिले. इस चीज़ को छोड़ दें कि हमें प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है. टीचर शुड बी वेरी नाइस, ही शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड. नो, दिस डज नॉट मीन आप एक्टिविटी कराएं, आप बच्चे को किसी भी टीचिंग मैथडोलॉजी से पढ़ाएं, आप एब्रप्टली अपने टीचिंग मेथड को क्लास में चेंज कर सकते हैं. आप अपनी आउटकम को साथ साथ मेजर करते हैं. जब हम क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एक लेसन प्लान करके जाते हैं उस वक्त हम बच्चों को स्टार्ट में कुछ चीज़ें डिलीवर करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं उनसे. लेकिन अगर हमें बीच में ऐसा लगे कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो टीचर अपने टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है. उसके लिए पर्टिकुलरली या स्ट्रिक्टली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो चीज़ वो प्री डिसाइड करके आया उसे उसी पैटर्न को फॉलो करना है. टीचिंग मेथडोलॉजीज कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू individual differences and according to demand of the time and according to demand of the class. So process को छोड़ें और इस चीज़ पे फोकस करें कि you must get your outcomes. Start each outcome with an action verb. ठीक है, हर जो आउटकम होती है उसका स्टार्ट हमें एक्शन वर्ब से लेना होता है. नाउ एक्शन वर्ब्स की हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है और लास्ट 2 टॉपिक्स में हमने सोलो टेक्सोनोमी और जो हमने ब्लूम टेक्सोनोमी किया था उसके अंदर मैंने आपको उनकी पूरी डिटेल्स बताई थी कि एक्शन वर्ब हम कौन से स्टेप्स और कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट कौन से एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं. अवॉइड वेज वर्ब सच एज नो एंड अंडरस्टैंड. इस तरह के अल्फाज को इग्नोर करें. इनकॉर्पोरेट अ मिक्सचर ऑफ लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग. आप जब भी आउटकम्स को मेजर करें कोशिश करें कि उसमें आप लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल दोनों को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी क्लास में हर तरह का बच्चा मौजूद होता है. सारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट नहीं होते. उसमें स्लो लर्नर, पैसिव लर्नर्स भी होते हैं. उसमें एवरेज जहानत और एवरेज जो थिंकिंग स्किल है उसके स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग स्किल्स को बहुत आसानी से समझ सकेंगे. तो कोशिश करें कि जो आप 3-4 आउटकम्स हर टॉपिक की बना रहे हैं उसमें 1 या 2 लोअर लर्निंग के मुताबिक हों और 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए हों. राइट द आउटकम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव. स्टूडेंट की एज, उसकी मेंटल एबिलिटी को मद्देनज़र रख के अपनी आउटकम्स को डिसाइड करें और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि इस बच्चे का प्रायर नॉलेज क्या होगा
और उसको फर्दर मैंने कितना नॉलेज डिलीवर करना है, और उसके बाद मुझे उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो क्या लर्न कर सकता है आसानी के साथ। चेक दैट द आउटकम्स रिफ्लेक्ट नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स। आपकी आउटकम्स में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कॉग्निशन भी होनी चाहिए, उसके साथ अफेक्टिव डोमेन भी होना चाहिए, और उसके साथ साइकोमोटर डोमेन भी होना चाहिए। ट्राई फॉर नो मोर देन 3 आउटकम्स पर मेजर टॉपिक, और एक मेजर टॉपिक जो भी आप टॉपिक डिसाइड करें उसके लिए कोशिश करें कि मोर देन 3 आउटकम्स जो हैं वो डिज़ाइन ना करें। पार्ट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स के कितने हिस्से होते हैं? बेसिकली जो हमारे पास लर्निंग आउटकम्स होती हैं उसके हम दो हिस्से समझते हैं कि उसमें दो हिस्से मौजूद होते हैं। और जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके दो हिस्सों में जो सबसे पहला हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं स्टेम का, ठीक है, उसको हम स्टेम कहते हैं। और जो सेकंड होता है उसमें हम एक एक्शन वर्ब लगाते हैं और उसके साथ हम एक स्टेटमेंट फॉलो करवा देते हैं। एक एक्शन वर्ब उसके साथ एक स्टेटमेंट फॉलो करवाई जाती है। तो बेसिकली एक लर्निंग आउटकम जो हम डिज़ाइन करते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम स्टेम कहेंगे और दूसरे हिस्से को हम एक्शन वर्ब कहेंगे। एवरी लर्निंग आउटकम फॉलोज अ स्टेम सच एज ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये जो हमने रेड में ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, दिस इज बेसिकली स्टेम, ठीक है। आफ्टर दिस स्टेम यू राइट अ लिस्ट ऑफ योर लर्निंग आउटकम्स। फिर हम 5-6 या 3-4 जितनी भी हम लर्निंग आउटकम्स लेना चाह रहे हैं हम उनको यहाँ डिज़ाइन करेंगे। ईच ऑफ विच बिगन्स विद एन एक्शन वर्ब और फ्रेज that tells people what sort of public observable activity will be expected of them. Finally, you have the object of that verb, a concept, idea, skill, attitude, or value. There are 3 domains of knowledge from which you can draw these objectives. अब इसमें हमारे पास 3 जो आ जाते हैं उसमें हमारे पास एक आता है कॉग्निशन, दूसरा आता है इफेक्टिव और तीसरा आता है साइकोमोटर। नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट जिसमें हम आउटकम्स, मेथड और असेसमेंट को देख सकते हैं। हमारा एक मेजर कोर्स है, दरमियान में कोर्स, और उसमें से हमने ड्रॉ की हैं लर्निंग आउटकम्स, और उन कोर्सेज और लर्निंग आउटकम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना टीचिंग मेथड और लर्निंग एक्सपीरियंस जो क्लास में जाके हमने चीज़ें यूटिलाइज करनी है, हम एविएट्स कौन सी यूज़ करेंगे, हमारा कंटेंट क्या होगा, स्टूडेंट्स की क्लासरूम में सिटिंग क्या होगी, कौन सी चीज़ें हम एज मॉडल क्लास में यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ों से हम बच्चे को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ हम अपनी असेसमेंट टास्क्स निकालेंगे कि एक टॉपिक को कवर करने के बाद स्टूडेंट में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी और वो किन तरीक़ों से हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अलाउस टू डेमोस्ट्रेट दैट लर्निंग हैज़ ऑकर्ड इन अ स्टूडेंट इन एन ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल वे, जो हमें एटलीस्ट इस चीज़ का अंदाज़ा लगवाती हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो मेजरेबल हैं। इट फोकसेस ऑन लर्निंग एंड स्टूडेंट सक्सेस, सपोर्टिंग द यूनिवर्सिटी मिशन एंड प्रीवियस और प्रेजेंट चेंजेस। इसके अंदर हम इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हम प्रोग्राम्स बच्चों को करवा रहे हैं उन प्रोग्राम्स के मुताबिक स्टूडेंट के अंदर वो चीज़ें चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही। आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स, और आउटकम्स जैसी आउटकम्स हम चाहेंगे, जैसा हम स्टूडेंट को बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक हमारा एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड बनेगा। एम्पावर स्टूडेंट्स टू बिकम मोर इन्वॉल्व विद देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, और आजकल के दौर में जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक पढ़ाए जाए उस स्टूडेंट को एम्पावर करें, उनके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनको डिज़ाइन किया जाए। ब्लूम्स एक्सपेंडेड टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब हम यहाँ से ब्लूम और सोलो टेक्सोनॉमी में कौन से एक्शन वर्ब आउटकम्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनकी हर कैटेगरी के हिसाब से कौन से एक्शन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चे की रिमेम्बरेंस चेक करनी है, उसकी वैल्यूएशन चेक करनी है, उसकी हमने ये देखना है कि उसने कितना अच्छा चीज़ों को अप्लाई किया, तो उसके लिए हम उसकी एप्लीकेशन के लिए जब आउटकम्स बनाएंगे तो हम कौन कौन से अल्फाज, कौन कौन से एक्शन वर्ब यूज़ कर सकेंगे।
तो Bloom expanded taxonomy पहले. Here are some active, public and observable verbs that you can use to communicate expectations at each level of Bloom's revised taxonomy, which we have adopted and changed to suit और नीड्स, जो हमारी नीड्स के मुताबिक जिनको हमने डिज़ाइन किया. द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट्स द लाइकली लेवल ऑफ complexity from least to most. The second column suggests some verbs associated with each level of complexity. You don't need to use the verbs we have included. If you know better synonym, go ahead and use them. मतलब कोई आपके लिए किसी भी किस्म की बाउंडेडनेस नहीं है कि आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है. अगर आपकी रिसर्च इससे ज़्यादा है और आपको इससे ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं तो यू कैन यूज़ दैम टू. तो यहाँ को पर्टिकुलरली किसी लफ्ज़ को यूज़ करने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जाता. नाउ दिस इज़ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और इसका जो सबसे लोअर लेवल है दैट इज़ रिमेम्बरेंस. और रिमेंबर के साथ जो रिमेंबर इसका कैटेगरी है और उसके साथ जो इसका एक्शन वर्ब है जिसमें हमने रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करना है, जिसमें हम डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट और स्टेट के लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह आप अंडरस्टैंड के साथ देखें. एक्सप्लेन आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, क्लासीफाई, डिस्क्राइब्स, डिस्कस, एक्सप्लेन्स, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकॉग्नाइज, रिपोर्ट, सिलेक्ट, ट्रांसलेट. थर्ड इसमें आता है अप्लाई, जिसमें हम किसी भी सीखी हुई इंफॉर्मेशन को किसी दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं. एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, इंटरप्रेट, ऑपरेट, schedule, sketch. Then there is analyze, draw connections among ideas, differentiate, organize, relate, compare, contrast, distinguish, examine, experiment, question, test. एंड फॉर इवेलुएट, इवेलुएट के लिए जो हम एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, अप्रेज, आर्ग्यू, डिफेंड, जज, सिलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, क्रिटिक, वे. Then there is create. For the create, produce new or origin a new work or to make something or to discover a new thing, we can use the words design, assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate. Now this cognitive and affective domain expressed in performative domain. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे दोबारा कुछ verbs दिए गए. ठीक है, हर एक लफ्ज़ के साथ, जिसमें रिकलेक्शन, कंप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन के लिए, एप्लीकेशन और एनालिसिस के लिए हम लोग कौन कौन से एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, ये सब एक्शन वर्ब्स की एक डिटेल्ड लिस्ट है. मे बी यू विल फाइंड समथिंग मोर. हम जितना इन चीज़ों को ढूंढते हैं ये उतनी ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ती चली जाती हैं. ये देखें, for the synthesis and creation and for the evaluation, I found these all words, so I like to share it with you people so you can also get a hint कि आप अगर different जगहों पे search out करेंगे तो you will find different action verbs. So there are no hard and fast rules कि आपको वही चीज़ें करनी है जो आज हमने टॉपिक में इंक्लूड की हैं. If you find better, if you can create new things, then you can create new action verbs. The second one is the Solo taxonomy. The Solo taxonomy was created by carefully analyzing student responses to assessment tasks by Biggs and Collins in 1982 and has been validated for use in a wide range of disciplines. In developing Solo, Biggs and Collins took into account many factors that affect students' learning, such as student prior knowledge and misconceptions, motives, and intentions regarding education and their learning strategies. The result in a construct that has both quantitative and qualitative dimensions. Now this was the Solo taxonomy. Just for a bit of review, I added a single slide. Pre-structural, unistructural. First stage is pre-structural, second one is unistructural, third is multistructural, fourth is relational, and last one is extended abstract. And here I tried to include those photos. About that I made an example in my Solo taxonomies lecture. Now Solo level. Pre-structure, the task is not attacked appropriately. The student has not understood the point. उसे समझ ही नहीं आई कि क्या सवाल उससे पूछा गया because he is blank. Unistructure, one or a few aspects of the task are picked up by used understanding as nominal. थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में know how your understanding हो जाना, that is unistructure.
At multistructural, several aspects of the task are learned but are treated separately, understanding as knowing about. ठीक है. Relational, the competencies are integrated into a coherent whole with each part contributing to the overall meaning. इसमें जो हमने multistructural और unistructural state पे चीज़ें सीखी हैं उनके दरमियान हम relationship create करते हैं. Then extended abstract में हम उन सब relations को मिला के एक नई चीज़ अपने लिए create करते हैं. Try to find out something new. Now these are the writing learning outcomes from solo taxonomy, जिसमें हम aims, know, understand, determine, appreciate, grasp, become familiar. और उसमें से हम outcomes क्या निकाल सकते हैं? Outline, reaction verb है. Distinguish between, choose, assemble, identify, solve, apply, describe, analyze, synthesize. Now in this picture I tried to कि मैं आपको इसमें सोलो और ब्लूम दोनों से आपको सजेस्टेड एक्टिविटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बता सकूं. ठीक है. अब जैसे इसमें देखें कि स्टेज 1 में उसने प्री स्ट्रक्चरल स्टेज है, स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड, और इसके टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लें. गैदर अलाइंड आइटम्स फॉर इंफॉर्मेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नो मीनिंग, नो डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग, मिसेस द पॉइंट. अब प्री स्ट्रक्चरल स्टेज कहीं पे भी ब्लूम टेक्सोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ब्लूम ऐसी स्टेज के बारे में कहीं भी नहीं लिखते जिसमें स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो. अकॉर्डिंग टू दैम जो भी स्टूडेंट आपके पास आता है वो अपने किसी ना किसी विजन, किसी ना किसी उसकी मेंटल एबिलिटी होती है जिसके साथ वो आप तक पहुंचता है. देन सेकेंड लेवल इज इन सोलो टेक्सोनॉमी, दैट इज यूनिस्ट्रक्चरल, और उसमें स्टूडेंट लर्न वन रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लूम लेवल में रिकलेक्शन, कंप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन को समझा जाता है. मल्टी स्ट्रक्चरल है, स्टूडेंट लर्न सेवरल रेलिवेंट इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होल, और इसके मल्टी स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और क्रिएशन को रखा जाता है. रिलेशनल में एनालिसिस, सिंथेसाइज, क्रिएशन और इवैल्यूएशन, और आगे उनमें आप दोनों में देख लें कि उनकी सजेस्टेड एक्टिविटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स भी लिखी हुई हैं ताकि आपके पास एक कंपैरिजन आ जाए कि जब हम इनमें एक्शन वर्ब बनाते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ के लिए कहाँ कहाँ किस किस तरह के एक्शन वर्ब और कौन सी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट से करवा सकते हैं उन एक्शन वर्ब्स के मुताबिक. नाउ दीज आर द रेफरेंसेस एंड फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Any sort of questions you can ask me anytime, anywhere. Thank you very much.